Hello everyone and a very good afternoon. I welcome you all to Pyramid Technoplast Limited's Q4 and FY25 con call. Please note that the discussion on today's call may include certain forward-looking statements and must be therefore viewed in conjunction with the risk the company faces. We have on call today Mr. Bijay Kumar Agarwal, who is the Managing Director, Mr. Jay Prakash Agarwal, CFO, and the whole-time Director. So I would now like to hand over the call to Jay sir to proceed with the opening remarks, post which we'll open the floor for Q&A. Thank you and over to you, sir. Thank you. Very good afternoon, everyone, and thanks for joining for the con call today. So now it is our pleasure to share the progress we have made in Q4 FY25 as we continue to execute our growth story this quarter. Saw some robust performance across all segments. Despite a dynamic market environment, we have maintained strong growth momentum. Our commitment to increase operational efficiency, enhancing product mix, and scaling capacities has positioned us well for long-term sustainable growth. We remain confident in the scalability of our business model. After establishing a strong foothold in Gujarat, now we are expanding our production capacity across all categories in Maharashtra, including polymer drums, विजय जी अनम्यूट कर लिया अपने आपको, एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए जरा. Can you hear Please me, continue. guys? Yeah. Now continue, please. Okay. So with our backward integration approach, with in-house manufacturing of our products like caps, lids, and many other items, and which is going to increase in future also, not only keep our cost in check, but also ensures better quality and faster turnaround. And with our strategic location near key industrial hubs, supported by our in-house fleet by more than 80 vehicles, we are well positioned to ensure timely deliveries, cost efficiency, and customer-centric approach. So now coming up with segment-wise performance. Now our MS Drums segment delivered a solid performance with 35% year-on-year volume growth and 27% revenue growth. Trial runs are currently underway for our expanded capacity of 90,000 units per month, and we are on track to begin commercial output by September 2025. With 90% of manual process already automated, we are expecting this segment to benefit much improved margins going on. And SDP drums, we saw a healthy upstick in the SDP drum segment this quarter, with 11% year-on-year volume growth and 6% year-on-year revenue growth. This was driven by the ramp-up across 4 SDP lines, 3 dedicated to 200-liter drums and 1 for 50-liter. Capacity utilization continues to improve across these lines. We remain optimistic about delivering even stronger results. Now coming to IBC, as anticipated, our IBC segment posted 44% year-on volume growth and 30% year-on-year revenue growth. Importantly, the revenue contribution from IBC rose to 37%, up from 31% last quarter, even in the face of rising competition. Our second IBC line has now been commissioned, and the first line is operating at around 60% capacity utilization, laying the groundwork for sustained momentum. Now, the strategic expansions. So we remain committed to our long-term expansion roadmap with ongoing investments in capacity enhancement. With Unit 6 MS Drum plant, we have successfully expanded capacity from 50,000 to 90,000 units per month. Trial runs are underway will continue through from June onwards, with commercial output expected by September. As volumes ramp up, margins are set to improve. Unit 7, as the new unit been implemented last year.
IBC segment, we have now commissioned our second IBC line, with the first one which went live in September 2023, is running at about 60% utilization. This sets up well to meet growing demand in the segment. SDP segment, we wrapped up the civil expansion in December 2024 only. Happy now active across 4 SDP drums lines for 200-liter capacity and 1 for 50-liter capacity. This gives us a solid incoming quarter. Now coming up to new unit. So we are gearing up to commence operations under phase 1. And here is how things are shaping up. So SDP drum, so we are setting up 50-liter, 100-liter. Trials are currently underway with commercial supplies expected to begin by end. IBC line 1 installation is in progress. We are targeting commercial supplies output by end of next month. Metal drums production is expected to go live July end. So and now with coming up to our recycling plant, so we'll be the first company to set up our plant with the approach of a backward integration. So we have already acquired the land, constructions are so to set up a recycling plant. Construction is now complete and we are on track to start operations by July-August 2025. The total capex, including land, is estimated to around 8 to 10 crores with a payback period of around 2.5 to 3 years. Along with our scalability, we are consciously making efforts to expand our margins like sustainability growth. As part of our commitment to sustainability and cost optimization, our 15 megawatt captive solar power project is progressing very well, with commissioning scheduled in phases starting. So now it has already started for implementation. So this initiative is expected to reduce annual power cost by around 10 and is set to begin on July. Financial, now coming up to financial performance. So revenue for Q4 FY25 172 crores, up by 12% quarter on quarter and 28% year on year, reflecting continued growth despite the market dynamics. EBITDA stood at 12.1 crore with a margin of 7%. We believe that benefits of economies of scale, cost optimization will start reflecting in the coming quarters. Net profit of Q4 FY25 stood at 6.7 crore. Margins saw some contraction in Q4, primarily due to a rise in other expenses driven by scaling operations and EPR related expenses. However, as we ramp up operations and push forward with our expansion plans, this temporary uptick in cost is a natural step toward building long-term capacity and driving sustainability growth. So our balance sheet remains healthy as always, with net debt to equity is 0.20x. With ongoing expansion and strategic investments, we are well positioned for the future. The completion of new capacities, sustainability initiatives, and backward integration will drive efficiency and profitability. As we scale operations, we remain committed to deliver consistent growth and value for our stakeholders. And we have also announced the dividend to our shareholder as committed earlier. So now we are open with the questions and answers. I would request everybody to start one by one question answers. Thank you, sir. We'll begin with the Q&A session and request the audience to please raise your hand before asking the question. Okay, so the first question is from Mr. Dipesh Sancheti. Please begin with your question, sir. हेलो जय जी, हेलो विजय जी। नमस्ते साहब, नमस्ते, बोलिए। नमस्ते, कैसे हैं? बस ठीक है सर। अच्छा, sir, just wanted to know what is the volume growth this time? Because sales growth almost ये साल का almost 10% था, and this quarter the sales growth was good. But what about the volume growth? Year to year 16% का ग्रोथ आया सर। 23-24 से जो इस बार जो आया हमारा 16% का 16% वॉल्यूम ग्रोथ है। And अगर segment wise volume growth अगर बता सकेंगे तो it will be great. हाँ,
देखिए MS drum is around 35% volume growth for year on year. SDP drum is around 11%. IBC में 44%. IBC is 44%. ABC is 44%. Okay. Yes, sir. And margins have been lower because of, I mean, साहब ये जो 4-5 करोड़ रुपए का एक्सपेंस हुआ है एक्स्ट्रा, यदि हम कोई कैपेक्स नहीं करते तो बैलेंस शीट अभी 6-7 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट दिखता है इस साल अपने। ये जो हम कैपेक्स कर रहे हैं गुजरात में और महाराष्ट्र में, तो बहुत से आदमी रखने पड़ते हैं, बहुत से एक्सपेंस लग रहे हैं, जो अदर एक्सपेंस जो देख रहे हैं आप 4-5 करोड़ से बड़ा है, वो Right. उसके कारण। But this is temporary because as we scale up production, जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वो वो अभी जैसे प्लांट यूज हो जाएगा, स्टार्ट हो हाँ। जाएगा, वो एक्सपेंस यूज होने लग Yes, जाएगा, तो exactly. आने वाले क्वार्टर से वो सब रिफ्लेक्ट करने लगेगा। okay. नहीं सर दैट इज ओके, लेकिन कौन से क्वार्टर से जनरली H2 FY26? जून क्वार्टर में भी दिखेगा, अच्छा जून ये क्वार्टर जो- में भी। जो हाँ। क्वार्टर चल रहा है इसमें भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट because होगा। our commercial सब हम है ना मई में चालू कर देंगे for polymer drums. So June onwards we'll get a sale of some portion of sales from WADA unit also in the next quarter. ओके गुजरात कंप्लीट हो गया है, खाली रिसाइकलिंग प्लांट का है, और महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो फेस बराबर है, वो जो टाइमलाइन है वो चालू हो जाएगा इस क्वार्टर में, उसका भी रिफ्लेक्शन आएगा इस क्वार्टर। ये क्वार्टर में। और हाँ, जो थोड़ा- पावर कॉस्ट जो रिडक्शन होने वाला है वो सीधा नेक्स्ट क्वार्टर में ही आएगा ना? सितंबर Yes, में yes. आएगा, जुलाई में वो लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेकंड वीक में पावर सप्लाई अपने यहाँ, तो उस Okay. नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा सितंबर। नेक्स्ट क्वार्टर में, हाँ, राइट। एंड अभी कितना केपेक्स करेंगे सर ये साल में FY26 में? कोई 50 करोड़ या कुछ ज्यादा? 50 करोड़ के आसपास होगा। 50-60 करोड़ का इस टारगेट बार 70 करोड़ का कैपेक्स हुआ है ड्यू टू सोलर वगैरह, बड़ा प्रोजेक्ट था। इस बार Right. 50-60। और सब कुछ इंटरनल अप्रूवल ही होगा ना सर? नहीं, बैंक से लेना पड़ेगा ना सर, इंटरनल तो 40-50 करोड़ रुपया आया, तो बाकी तो आपको पहले इसका बैंक से ही लेना पड़ेगा। अच्छा एक आपका ठीक है। कुछ भी आएगा। मैं तो यही पूछ रहा हूँ सर, इन्वेस्टर्स के पास कभी आ रहे हैं तो मतलब फंड रेजिंग के लिए कभी आ रहे हैं उसके लिए पूछा था। देखते हैं आएंगे, आपके पास आएंगे। Great sir, great, congratulations on the good volume growth sir, and if there are any other questions I'll fall back in line. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next up, we have Saket Kapoor. Please go ahead with your question, sir. नमस्कार साहब। नमस्कार कपूर साहब, बोलिए। सर फर्स्टली सर, अगर हम देख रहे हैं आपने ऐसे पिछले 2 क्वार्टर पहले ये भी कहा था कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बॉटम्ड आउट हो गई है, तो इस क्वार्टर में सर रॉ मटेरियल के क्या प्राइस अपवर्ड ट्रेंड थे? ये जो रेवेन्यू इंक्रीज हम देख रहे हैं Q1Q अपवर्ड नहीं, इसमें RM का अपवर्ड प्राइस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी कुछ ना कुछ 1-2 रुपया कम भले ही हो जाता है, बढ़ता नहीं है, लेकिन वो 1-2 रुपये से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है आने वाले समय में जो हम माल ले रहे हैं वो बहुत बेटर प्राइस में ले रहे हैं, वो सब रिफ्लेक्शन इस साल आएगा, तो जो भी हम ले रहे हैं अभी रॉ मटेरियल का कोई हमारे को असर नहीं हो रहा है कम होने से, बढ़ेगा तो फायदा जरूर होगा, घटने से कोई हम अपने पर इफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन है वो टनेज टर्म में ही है जो बढ़ा है, हमारा जो हाँ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसके कमेंसरेट ही हुआ है, कोई प्राइस का उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। प्राइस में है ना 11% का है, वैल्यू वाइज ग्रोथ देखेंगे, वॉल्यूम वाइज 16% है, प्राइस वाइज वॉल्यूम वैल्यू वाइज देखेंगे तो 11% का ग्रोथ है। बाकी सर मार्जिन की ट्रेंड्स कैसे रहेगी अगर हम लोग ये साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो मार्जिन तो हमारी सप्रेस्ड ही चल रही है। हमारा आपने जैसे देख रहे बताया हैं कि मटेरियल टू मटेरियल आप देख रहे हैं 24% है, वो 25.5% के पास आ जाएगा अगले साल में। रिपीट डाटा जो ग्रोस प्रॉफिट देख रहे हैं वो 16.5-17% पे आ जाएगा, और रिपीट डाटा जो देख रहे हैं वो 10% के पास आपको दिखेगा नेक्स्ट ईयर। जो सब चीज टेक पे चल रहा है वो ऑनलाइन है, वो होने से वो वहां पहुंचेंगे अपने अगले साल। सर अभी तक हमने पूरा टॉप लाइन के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। So this financial year our target is to improve on bottom line also. So we have already taken many initiatives like backward integration plus
utilization of all the production capacity across the segment, plus solar implementation, and we are coming up with our own recycling plant. So altogether, it will definitely help in improving all the, including top line and bottom line. So now we will start getting results from coming quarters, but surely we'll start getting for this financial year. मतलब जून में इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं? वो थोड़ा दिखेगा, थोड़ा It will definitely improve on from the last quarter, but full fledged है जो वो coming quarter onwards से मिलेगा. वाड़ा भी हमारा कमर्शियल चालू होगा ये मंथ एंड से, फॉर ओनली पॉलीमर ड्रम्स अक्रॉस ऑल सेगमेंट चालू होने में 1-2 क्वार्टर और लग सकता है. एक क्वार्टर और लगता है. हाँ. सर मैं फिर से क्यू ज्वाइन करता हूँ, फिर दोबारा से ज्वाइन करता हूँ. Thank you, sir. Next in line, we have Naitik Mohata. Kindly unmute yourself. Good afternoon, sir, and thank you for the opportunity. So my first question is, what is our current utilization level across all our units? देखिए अभी जो यूनिट चल रहे हैं सारे 100% यूज है. सारे almost 100% used है. इतना पूरा का पूरा यूज हो रहा है, कहीं पर भी सर्कुलर नहीं है हमारे. Okay. Also, sir, this unit 8 which we have recently commissioned, so when are we expecting कि इसमें है ना अपना पूरा ramp up हो जाएगा production 100% utilization? महीने लगेंगे, 3 महीने में जो आ रहा है वो 2-3 महीने के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट होने से 3 महीने में हम So, sir, I think there's some disturbance, but I think you said कि production when Ashwath sir, request you to please mute yourself. Yes, sir. So I understood that you have said कि when the production will commence in 3 months, we can get up to optimum utilization levels. Also, sir, ये unit 8 अपना अगर optimum utilization पे चलेगा तो how much revenue can it do? 200 Ashwath करोड़ sir. का तो पूरी कैपेसिटी जो अभी जो फर्स्ट पेज डाला उसमें 200 करोड़ का रेवेन्यू है. और उसके अंदर अभी उसकी उतनी डबल कैपेसिटी और कर सकते हैं, उतनी जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो इस साल में हम मैक्सिमम ये मान के चलते हैं कि 70 से 100 करोड़ का रेवेन्यू वहां से मिलेगा हमको. Okay. Okay. Thank you, sir. That was very helpful. Thank you, sir. Next in line, we have Ashwath Rajan. Please go ahead with your question, sir. Am I audible? Yes, you're Hello. audible. हाँ सर कुछ बोलिए. हाँ सर. So first question is in line with जो 1.5 CR का EPR liability that we have on so for on Q4 how do you see this margins normalizing EPR liability for on Q4? Q4 में हमारा 70 लाख का लायबिलिटी है. इस साल जो 24-25 में जो आ रही है वो लायबिलिटी EPR की 70 लाख. ये EPR लायबिलिटी क्या है? जो कस्टमर हमसे माल लेते हैं वो लायबिलिटी उनकी है. तो जो कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं हुए थे उनकी लायबिलिटी मेरे ऊपर कैरी फॉरवर्ड होती है और वो मैं पेमेंट कर देता हूँ. अभी रजिस्टर्ड बढ़ गए हैं तो इस बार जो हमारा लायबिलिटी आ रहा है इस 70 लाख के आसपास आएगा EPR का लायबिलिटी. So as an end, customers are getting registered on the EPR because government has mandate that manufacturers and user has to get registered on the portal. So slowly and gradually customers are getting registered. So our liabilities are getting transferred. So this is across all the manufacturers. It is not with us only. So this is what we are continuously chasing customer. We are educating customers who doesn't know about this. नहीं दूसरा और भी है साहब. जो हमारा रिसाइकलिंग प्लांट चालू होगा तो हम रिसाइकिल मटेरियल यूज करने लगेंगे तो EPR की लायबिलिटी वैसे भी नील हो जाएगी. Got it. तो अभी in terms of margins do we see मतलब कोई है stabilizing margins रहेंगे EBITDA level पे साहब इस बार भी जो मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन अच्छी है. ये जो कैपेक्स कर रहे हैं उसका असर बैलेंस शीट में दिख रहा है इस साल.
तो केपेक्स की वजह से फिर बॉटम लाइन में और कुछ जो ट्रांसपोर्ट इधर उधर जो बहुत से खर्चे हैं जो 3-4 करोड़ रुपए अदर एक्सपेंस को बढ़ा दिया। जब वो सेल आने लगेगी, माल बनने लगेगा तो खर्चा अपने आप सेटअप हो जाएगा। Right. तो बॉटम लाइन में सर आपको मार्जिन्स में कुछ प्रेशर लग रहा है कि इट विल बी मोर और लेस सिमिलर? सिमिलर ही No, रहेगा। it will increase only in coming quarters. जो हमारा प्रॉफिट देख रहे हैं आप, उसमें अच्छा इंक्रीज देखेंगे नेक्स्ट इस क्वार्टर, Yes. कमिंग क्वार्टर। Okay, got it. And another question is, I mean, with your upcoming plant, जो Unit 9 वाला है, do you anticipate any material reduction in the EPR liability over the next 3 years? में जो हम प्रोसेस करेंगे सर, वो मटेरियल भी हमारे को 10-12 रुपए चीप पड़ेगा। वो प्राइस का भी होगा, ईपीआर लायबिलिटी भी उससे सेटअप हो जाए, दोनों काम हो। Okay, sir, got it. Thank you for the. Thank you, sir. Request all the other participants to please mute yourself to avoid noise and disturbance. Okay, next we have Shweta. Ma'am, please go ahead with your question. Hi, thank you. Am I audible? Yes, absolutely. Yes, you are. Yeah. So, सर आपने अभी बताया कि वो रिसाइकलिंग प्लान भी आप ला रहे हो, तो उसका कुछ बता सकते हो और वो कैसे हमें एडवांटेज होगा उसका? देखिए, हम जिनको ड्रम या आईबीसी जो भी मटेरियल देते हैं, वो लोग पैकिंग में, उनके पास भी ड्रम और आईबीसी आते हैं उनके मटेरियल में। वो उनसे मैं माल अपना जो ड्रम जाएगा उससे जो वो यूज करते हैं, वो ड्रम आईबीसी वगैरह मैं उनसे कलेक्ट करूंगा, परचेज करूंगा और उसको रिसाइकिल करूंगा। तो वो मटेरियल भी हमारे पास सही आएगा और सही मटेरियल भी बनेगा, और इसके लिए वो प्लान डाला है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि उसमें रॉ मटेरियल जो बनाएंगे उससे रिप्रोसेस करके उसमें भी बेनिफिट है, और वो जो ईपीआर की लायबिलिटी है वो उससे कम, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है वो भी पूरा हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। तो प्राइस वाइज मार्जिन में हमें कितना फायदा होगा? 10 रुपए किलो का करीब करीब हमारे को लगता है। उसमें जो भी हम प्रोसेस करेंगे, वहां माल प्रोडक्शन करेंगे, उसमें 10 रुपया किलो का सेविंग होना चाहिए। Okay, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Next we have Majid Ahmed. Sir, please go ahead with your question. I'm audible, sir? I'm audible, sir. Can you hear me, sir? I'm audible? Yes, sir, you're audible. Please Yes, go sir. ahead. Okay, sir. Thank you for the opportunity, sir. So my first question, sir, is what is your going forward capacity utilization going forward? Because when I see the capacity utilization for polymer drum, it is 75%. For MS drums, it is 69%, and IBC it is 61%. Right? And going forward, you're going to increase volume in each segment with 20%, 35, 50%. But your revenue growth, you're showing only 15 to 20%. Is it because of the realization compression, or what is it going forward? नहीं, प्राइस ड्रॉप हुए हैं। जो पिछले साल जो रॉ मटेरियल के प्राइस थे, इस साल भी उस 2-3 रुपए किलो कम रहा है, प्लस कुछ कंपटीशन भी हुआ है 1% का। लेकिन ये जो प्राइस कम होते हैं, इसलिए वो वॉल्यूम ग्रोथ 16% का है, वैल्यू वाइज ग्रोथ 11% का देख रहे हैं। पॉलीमर ड्रम वगैरह जो यूटिलाइजेशन है सब 75%, 80% से ज्यादा रिलाय होता नहीं प्रोडक्शन उसमें। आईबीसी में 60-70% होने के बाद हम लोग 60% के बाद एक नई लाइन डाल लेते हैं कि जिससे मार्केट में सरप्लस जब भी डिमांड आए तो हम दे सकते हैं। मेटल ड्रम का जो यूटिलाइजेशन है वो अभी जब ऑटोमेशन कर रहे थे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहती थी लाइन, अभी वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो प्रोडक्शन वहां बढ़ जाएगा। Got it, sir. But the realization, would it increase or would it remain the same for next year? No, it will increase. The realization will increase as we utilize the production capacity higher. The realization will increase. But sir, when you're showing it, you're showing it 20, like overall, when I see the volume is higher for FY26, but your revenue growth projection for FY26 much lesser than that. You're showing 15 to 20% revenue growth. I'm not able to understand. So why is the reason? The figures which are very conservative figures we have added. We don't want to put very large figures. So that is why we have been very conservative in our approach. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. All the very best. Thank you, sir. Request all the participants to please raise your hand for questions. Next in line, we have Jay Vankaria. Sir, please go ahead.
Sir, you're not audible. You need to unmute yourself, sir. Hello. Sir, you're on mute right now. I'll take up the next question as of now. Devakar Rana, sir, please go ahead with your question. हेलो सर, am I audible? जी जी बोलिए। हाँ सर, अभी आपका डेट इस Can you फाइनेंशियल speak ईयर a में little अराउंड louder, sir? 55 करोड़ है, तो आप कितना डेट प्लान कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में? सर थोड़ा loudly बोलेंगे सर? It's very volume is very less. ये डेप्थ जो है सर, मैंने आपका आवाज आ रही है, मैं समझ गया आप जो बोल रहे हैं। मैंने 60 करोड़ का कैपेक्स किया, टर्म्स लोन लिया था पिछली बार, और 20 करोड़ का 20 करोड़ का लोन, टर्म लोन और ले रहा हूँ उसी में। तो 100 करोड़ के आसपास का ये समझिए कि टोटल हो रहा है। अच्छा, तो ये 100 करोड़ सर हम इसी फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाएंगे FY 26 एंड में? हाँ देखिए, जब सेल बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल भी लगती है। अभी जो वर्किंग कैपिटल गैप है हमारा, मान लीजिए हमारे को 100 करोड़ का बनता है, तो हम कैपेक्स जो बैंक से यूज करते हैं 30-35 करोड़ का करते हैं। अब मेरे पास फंड था तो उसको यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ सरप्लस लेकर इसलिए रख रहे हैं कि कभी भी कोई तकलीफ नहीं आए बिजनेस में, कभी पेमेंट देना है किसी को लेना है, तो इसलिए वो कैपेक्स लिया हूँ। और जब सेल बढ़ेगी, सर अभी मार्केट में डेप्टर्स वगैरह जो रहते हैं, पहले आज 120 करोड़ है, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वो 150 करोड़ पे भी जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आएगी। इसके लिए बैंक से लिया है हमें। So we have taken limits, but we will utilize and as and when required. ओके सर, आपने पुरानी कॉन कॉल्स में बताया था कि 8.5% पे आपने लिया हुआ है इंटरेस्ट, जी हाँ it's 8.5%. जी। तो सर इस साल की फाइनेंस कॉस्ट आप कितना ज्यूम कर रहे हैं? 7 से 8 करोड़ फॉर FY 26? लगभग 6.5-7 करोड़ का सोच रहा हाँ, हूँ। क्योंकि क्या यूटिलाइजेशन के ऊपर चार्ज लगेगा सर, तो एवरेज उतना ही आएगा, 6.5-7 करोड़ के आसपास। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you, sir. Next up, we have Dipesh Sancheti. Please go ahead with your question, sir. Yes, sir. Am I audible? हाँ Yes, हाँ, sir. अरे बोलिए। Yeah. सर couple of questions. एक तो कन्वर्जन प्राइस इस बार ये साल में कितना था? सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं क्या? क्या कन्वर्जन नहीं कन्वर्जन जो हमेशा हमें जो प्रोडक्ट कन्वर्ट करके के बाद आपने आई थिंक लास्ट फ्यू कॉन कॉल्स में कुछ 20 रुपया बोला था, तो इस 20 बार भी रुपए का? उतना ही है? हाँ, उतना ही है। मोर और लेस सेम ही रहेगा। मोर और कभी लेस 1 सेम ही है। रुपया कभी बढ़ हाँ। जाता है, वो परचेज प्राइस पे डिपेंड करता है, तो लेकिन 20 रुपया Right. रहता है। ओके सर, जब भी आपका रिसाइकलिंग प्लांट एक्टिव हो जाएगा, तो यू सेड दैट आपके पास 10 रुपीज पर केजी का सेविंग्स होगा, तो क्या ये 20 रुपीज 30 रुपीज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं ऐसा वो थोड़ा परसेंटेज मिक्स होगा ना साहब। हम मान लीजिए 4000 टन यूज करते हैं महीने का पॉलीमर, ओके तो वहां से तो कितना है, माल कितना लेंगे 1000, उसके अंदर 10% 20% आप यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है कि 20% आपको यूज करना है रिसाइकलिंग। तो अच्छा उतना माल बनना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, यूज भी होना चाहिए, ड्रम अच्छे बनने भी चाहिए, सब है ना उसमें कारण। राइट। सर वो इसलिए हम उसको समझ के चल रहे हैं कि अभी हम उसमें से 5% 10% माल मिक्स करेंगे इसके अंदर, सब क्वालिटी 10% से। माल। But it is a Okay. total new company and it will give a lot of opportunity. मार्जिन हम आज जो हम फिगर दे रहे हैं उसमें उसकी कोई भी मार्जिन पकड़ नहीं रहे कि हम उसमें से कितना कमाने वाले हैं। वो मेरे Right. लिए नया बिजनेस है, तो हम कोई भी, लेकिन लगता है कि हम कमाएंगे उसमें 2-3 करोड़ रुपया, तो इस साल में भी जरूर इनकम आनी चाहिए। वो नहीं पकड़ रहे हैं, कोई फिगर बता रहे हैं। ओके, मतलब करीबन 1-2 रुपया पर केजी का ओवरऑल सेल्स पे आ जाना चाहिए। चाहिए, हाँ ना जी। ओके, और अभी सर रॉ मटेरियल प्राइसेस कितने हैं? लगभग 90 रुपीज के आसपास। 90 रुपीज के आसपास। ओके, तो स्टडी ही रहे ना, तो मतलब रॉ मटेरियल के। सो हाउ इज द रॉ मटेरियल प्राइसेस लिंक्ड टू क्रूड? इज इट लिंक्ड टू क्रूड? कुछ क्रूड नहीं है सर, कोई लिंक नहीं है, Crudes- डिमांड गेम है पूरा डिमांड सप्लाई। हाँ, Okay. सरप्लस डिमांड कम होता है सर। ठीक है। अच्छा सर, ये अपना रिसाइकलिंग प्लांट कब तक आ जाएगा? जुलाई में चालू होने की उम्मीद करते हैं, जुलाई से अगस्त तक। July August तक it is a fully automatic plant. We just need to feed material and we will get a finished product in hand.
So So trials July. are all, So testing is already done. So now it will start commissioning in next month onwards. तो जुलाई अगस्त में फुल फ्लेज चालू हो जाएगा. और जो कस्टमर्स से वापस से रॉ मटेरियल लेना है, मतलब जो उनके पास मटेरियल होगा वो लेना है, ऑल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेट कि वो करना, वो अभी भी करना बाकी है. Discussion with all major customers. I myself is looking after जिस this दिन project. हमको परचेज करने लायक होंगे तो बात करूंगा. बात ऐसे बता रखा हूँ सबको, सब रेडी भी है, Okay. लेकिन मैं रखूंगा कहाँ उसको, तो कुछ करना है ना. So अच्छा. already we have been now we have started marketing on this with customers. So but I'm sure that things will many customers will start getting on board with this product. So the customer's EPR liability, what will happen to that? मतलब वो EPR liability कम हो जाएगी as soon as they give you the raw material? कस्टमर को भी ये इंटरेस्ट है, कस्टमर को भी वो लायबिलिटी है. यदि मैं ईपीआर Right. में माल दूंगा तो कस्टमर की लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी. उनको आज जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो बच जाएगा. उनके लिए Okay. जरूरी है नॉर्म्स को पूरा करने के लिए ईपीआर ड्रम यूज करना. Right. And कितने परसेंटेज तक ये 5 to 10%, right? 20% गवर्नमेंट नॉर्म्स है. 20%. Okay. Okay. And सर डेट अपना 100 करोड़ तक जाएगा, तो ये पूरा वर्किंग कैपिटल ही है ना, कि इसमें कुछ टर्म लोन भी है? है ना. 60 करोड़ का तो पिछली बार भी लिया था. 20 करोड़ 80 करोड़ का ये टर्म लोन है. 80 करोड़ रुपए टर्म लोन है. बाकी वर्किंग कैपिटल. Okay. Okay. Great, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Next, we have Naman Bansali. Sir, please go ahead with your question. Hi sir, thank you for the opportunity. So first question तो pricing पे है, in terms of जैसे आप अभी KM Expo भी आए थे, and there are multiple other players who have similar type of products in IBC and all, but still the market is majorly duopoly. तो इसमें कैसे समझे कि overall competition can come up with pricing pressure to us, या फिर हमारा servicing significantly different है? देखिए प्राइसिंग कंपटीशन तो रहना ही है सर. उसमें प्राइसिंग कोई हमारे को मार्केट में कोई एक्स्ट्रा मिलेगा ऐसा नहीं है. जिसकी सर्विस क्वालिटी अच्छी है उसको ज्यादा मार्केट शेयर मिलता है. उससे तो हमारी यदि कुछ ना कुछ तो ऐसी जरूर होगी जो हमारा इतना ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर हो रहा है. हम अच्छी क्वालिटी देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं सर, तो कस्टमर भी मेरे पास टिकते हैं और नए कस्टमर भी बोर्ड होते हैं. इसलिए ये ग्रोथ हुआ है. वॉल्यूम ग्रोथ तभी मिला है ना मेरे को 16% का. क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा खासा ही ग्रोथ है. ओके सर. एंड सेकंड क्वेश्चन इज, अभी जैसे स्केल अप काफी सारा होने वाला है 3 लार्ज यूनिट का, सो इसमें ऑपरेशनल रिस्क क्या देख सकते हैं हम, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, अगर कोई रिस्क आपको लग रहा है? सर रिस्क तो लिया ही नहीं ना हम. रिस्क क्यों लूंगा मैं? नहीं सर, इन टर्म्स ऑफ स्केल अप ऑफ दिस फैसिलिटी, या फिर कोई ऑपरेशनल साइड में आपको? सब है, उसको मैनेज करके ही सब काम कर रहे हैं. यहाँ पे आने से हमको 2-3 एडवांटेज मिलेंगे सर. फ्रेट एडवांटेज मिलेगा हमको. ऑपरेशनल्स जो we were selling many IBC product pan India, so we will shift some IBC business Maharashtra customer. We will onboard new customers. So we don't look any challenges coming up. It is a win-win situation for customers and for us also, both. ओके गॉट इट, थैंक यू. Next question we have from Saket Kapoor. So please go ahead with your question. हाँ सर. साहब हाँ. एक पहले एक छोटा सा सर एक ब्रीफिंग और कर दीजिए. ओपनिंग रिमार्क में मैं थोड़ा मिस्टेक रह गई थी मेरी कि सर फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर हम क्या क्या कैपेसिटी एडिशन देख रहे हैं, और ये वित्त वर्ष कैसे डिफरेंट देख रहे हैं पिछले वर्ष से. क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है जिनके बेनिफिट्स एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम में हम इस वर्ष इन नंबर में देखेंगे सर. एक बार ब्रीफ और कर दें. पॉलीमर ड्रम का हमारा यूनिट 8 जो महाराष्ट्र में है, उसके पॉलीमर बिजनेस इस महीने में स्टार्ट हो जाएगा. आईबीसी का बिजनेस जून में हो जाएगा और जुलाई में मेटल ड्रम का बिजनेस चालू हो जाएगा, जो नया मेरा सेटअप है. टोटल ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ हम जो देख रहे हैं, लगभग हम समझ रहे हैं कि 15 से 20% का ग्रोथ आना चाहिए इस क्वार्टर में, मतलब इस साल में टोटल. ओके सर. और बॉटम लाइन इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंसी के करने के लिए जो बॉटम लाइन, एक तो सोलर का इंप्रूव हो जाएगा, 10 करोड़ रुपया तो वहां से बेनिफिट आएगा.
और पॉलीमर वगैरह का ये सब रिस्क मैंने जो परचेज कर प्राइस है वो भी, उसमें भी हमारे को फायदा है। वो प्लस जो एक अदर एक्सपेंस वगैरह है वो ऑटोमेटिक बिजनेस में सेट हो जाएंगे। तो उस दो कारण से हमारा ये बिजनेस दिखेगा आपको कि ठीक है, और मार्जिन बढ़ गई है। तो मैं जो समझ रहा हूँ ईपी डाटा मेरा 10% के आसपास आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट 16.5% के पास आ जाएगा, और मार्जिन प्रोडक्ट बने मटेरियल टू मटेरियल 25.5% पे आ जाएगा। और सर ये जो ब्याज का जो इम्पैक्ट रहेगा वो आपके वॉल्यूम और एफिशिएंसी से ही मिटिगेट होगा, क्योंकि ये जो नंबर है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो इस वर्ष 2.5 करोड़ है, वो आप 6-7 बता रहे हैं सर, तो 4 करोड़ का इम्पैक्ट रहेगा इस साल। यदि उसमें जो सोलर का कॉस्ट बता रहा हूँ 10 करोड़ रुपया, वो ब्याज जैसे सोलर से देखने जाएंगे तो 12-15 करोड़ का बेनिफिट, वो इंटरेस्ट उसमें कंसीडर कर रहा हूँ। जो सोलर का इंटरेस्ट है 2-2.5 करोड़ रुपया, वो उसमें कंसीडर कर रहा हूँ सेविंग में। और सर फिर ये जो डेट रिपेमेंट रहेगा इसमें इसको हम लोग कैसे प्लान आउट करेंगे? पूरे कैश एक्रूवल से ही जाएगा? कैश एक्रूवल से जाएगा, आज तक वैसे ही किया हूँ, जब भी टर्म लिया हूँ जो इंटरनल एक्रूवल है उसी से पेमेंट किया हूँ आज तक। मेनली सर ये हमारी इसमें मेजर पार्ट आपका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स का ही रहेगा, जो आप बता रहे हैं सोलर का इम्पैक्ट रहेगा, तो हमारा बिलिंग कम आएगी उसके कारण से। सोलर से तो वही होता है, सोलर से तो एनर्जी का ही सेविंग होना है। बस यही मेजर, तो सर लोन इसी के लिए ले रहे हैं हम। हाँ, मेनली उसी के लिए ले रहे हैं, उसमें कॉस्ट भी सेविंग है। ये 3 साल में तो पेबैक हो जाता है सर सोलर में। 3 साल का पेबैक हो जाए, ठीक बात है सर। ठीक है सर। सर एक अनुरोध रहता है कि हाँ बताइए। 25 साल का सोलर का एनर्जी मिलता है, 3 साल में आप पेमेंट कर दिया, फिर 25 साल आगे आपको सेविंग है उसकी। जी सर। प्लस लैंड भी कंपनी की हो जाती है, जो लैंड है वो भी आपकी हो गई, वो भी एक एसेट खड़ी हो जाती है 25 साल के बाद। तो सोलर प्रोजेक्ट में कहीं कोई गलती नहीं है। सर एमएस ड्रम मार्केट में अभी हम कैसा मैंने कंपटीशन देख रहे हैं? आपके जो मेजर प्लेयर है बामन लॉरी एंड ऑल, कैसा सर मैंने डिमांड सप्लाई में कैसा फर्क देख रहे हैं? और क्या अगर उस विषय में कुछ और बताना चाहें, बेसिक बिजनेस में कैसा सेंटिमेंट है सर? क्वालिटी बामन लॉरी से भी लोग अच्छी बोलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। जी सर। ये हमारा माल जो बनता है वो बिक रहा है, डिमांड है। We are the few major players of MS drum in the market. आप जो कंपटीशन का नाम लिए और 2-3 कंपटीशन है, so we are expanding our capacity. We see a lot of growth coming up in that segment also. So we don't want to leave that opportunity untouched. So we have been ramping up our capacity. हाँ, अब हमने पहले सेमी ऑटोमेटिक था हमारा, अब फुली ऑटोमाइजेशन कर रहे हैं. So it will help us improve our top line and bottom line both. And we see a very lot of scope coming up in metal drum. सर इसमें मार्केट कितना ग्रो कर रहा है और हम कितना कंपटीशन का मार्केट शेयर बना रहे हैं? मतलब क्योंकि ये जितने भी सेगमेंट में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम कंपटीशन को भी ले रहे हैं, प्लस फर्दर ग्रो कर रहा है। कपूर जी, मेरे हिसाब से ग्रास ग्रोथ जो है 6% का है। यदि हम 16% ग्रोथ कर रहे हैं तो वो कहीं किसी ना किसी का तो मार्केट शेयर ले ही रहे हैं ना सब चीज। तो सीधी सीधी बात है। जी सर। मैंने से अगर अपने नट सेल में इसको समराइज करें तो ये वित्तीय वर्ष डेफिनेटली काफी बेटर होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत ही है इस साल के लिए। और अभी से जो पहले जो 2 महीने सर अभी बीते हैं अभी हमारे, उसमें बिजनेस में कैसा ट्रैक्शन आप देख रहे हैं सर? कामकाज में किस प्रकार का? हाँ सर। अच्छा ही देख रहे हैं, अच्छा ही देख रहे हैं। अच्छा, ठीक बात है। अच्छा सर एक बस, जी सर एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, जैसे दोबारा जब भी हम लोग कॉल करते हैं अगर आईआर टीम को भी कन्वीनियंट हो तो ये 3:30 पर अगर रखें सर तो ज्यादा कन्वीनियंट होता है 3 PM की जगह सर। अगर आधा घंटे का रुझान हो जाए सर ये तो बढ़िया रहेगा सर, पार्टिसिपेशन में भी थोड़ा सा सुविधा आ जाए। जी सर ठीक है सर। बाकी मैं फाइनेंस नंबर 1-2 मिनट में फिर दोबारा क्यू में आता हूँ। Thank you, sir. Next question we have from Ankit Kanodia. Please go ahead with your question. Yeah.
थैंक यू सर। सर जितना मैं अभी तक समझा हूँ कि आपने पुराने कॉल्स में भी जो बताया है कि आईबीसी का जो हम काम करते हैं इसमें एक तो हमारे पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, और दूसरी ऐसा कोई नया कुछ हम लोग नहीं कर रहे। जो हम करते हैं वो बाकी सब भी करते हैं। एंड हमारा जो भी, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो जो भी चीज़ है वो बेसिकली वॉल्यूम ग्रोथ पे डिपेंडेंट है हमारे हाथ में, क्योंकि प्राइसिंग तो हमारे हाथ में है नहीं। वो मार्केट में जो प्राइसिंग रहती है उसके हिसाब से ही हमको करना पड़ता है। अगर मैंने थोड़ा भी स्कटलबट किया था, कुछ केमिकल कंपनी से बात की थी, आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, कि उसमें मुझे ये पता चला कि 1 टन के नीचे एमएस ड्रम लगता है, और आईबीसी 1 टन से 20 टन के बीच में यूज होता है, और 20 टन के ऊपर में लोग टैंकर यूज करते हैं रादर देन आईबीसी, जो लोडेड टैंकर होते हैं। तो अगर आप थोड़ा ये तीनों सेगमेंट के ऊपर पहले तो ये बताइए कि मेरी सोच ये गलत है कि सही है, और अगर सही है तो ये तीनों सेगमेंट के बेसिस पे आप अगर थोड़ा मार्केट बता सकते हैं कि तीनों में कितना बड़ा मार्केट है और हम लोग किस तरह से उसको टैप कर सकते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होगा सर। थैंक यू। टन के नीचे जो एमएस ड्रम बोला ऐसे नहीं, उसमें एचडीबी ड्रम भी लगता है, खाली एमएस ड्रम ही लगते हैं ऐसा नहीं है। समझ रहे ओके, समझ वो जो आपसे ठीक है, केमिकल वाले से पूछते होंगे, शायद उनके यहाँ पॉलीमर एचडीबी ड्रम यूज नहीं होता होगा, वो एमएस ड्रम यूज करते एग्जैक्टली, होंगे। और राइट, दूसरा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि एक टन से ज्यादा भेजने वाले को आईबीसी जरूरी है, एक ड्रम जरूरी नहीं है, ये भी नहीं है। ये सारे जो चॉइस है, सामने जो बायर है वो जो पैकिंग में मांगते हैं, यहाँ बनाने वाले को उसमें पैकेज पैक करके देना पड़ता है। बहुत से लोग बहुत से केमिकल है जो पॉलीमर ड्रम में ठीक है, तो वो पॉलीमर के इसमें लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसा है केमिकल जो एमएस ड्रम में ही चाहिए। कुछ यूरोप के या बाहर के देश के लोग, कुछ कस्टमर हैं जो उनको कि आईबीसी में ही पैकिंग चाहिए, वो आईबीसी में लेते हैं। और आईबीसी मेनली एक्सपोर्ट में जाती है, लोकल डोमेस्टिक बहुत कम है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि प्राइसिंग, तो देखिए मार्केट है, प्राइसिंग तो कोई भी आदमी अपने कंट्रोल में कोई भी चीज की नहीं कर सकता है। डिमांड सप्लाई है, जैसा जो जिसकी क्वालिटी है, जैसी चीज है वो सेल हो रही है। दूसरी, हमारी क्वालिटी लोगों को जरूर हम समझते पसंद आती होगी, तो हमारा 44% का ग्रोथ लगभग क्वार्टर टू क्वार्टर आया है। समझ रहे हैं मेरी बात? आई आ रही यस आवाज सर, आपको? यस सर, यस सर। सर प्राइसिंग और ये सब चीज के ऊपर तो एकदम क्लियर था पहले से ही। मैं खाली हाँ ये समझना हाँ चाहता हूँ कि बेसिकली आपने जो बोला अभी उसके हिसाब से यही है कि आईबीसी का ग्रोथ हमारा एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट ज्यादा रहता है, राइट? हाँ, डोमेस्टिक भी है, लेकिन मैंने के एक्सपोर्ट में पर लार्जली एक्सपोर्ट ड्रिवन। एक्सपोर्ट पे है, लेकिन अपनी आईबीसी एक्सपोर्ट भी होती है। तो अपनी क्वालिटी जहां पर दूसरे बनाने वाले बैठे हैं, वो अपनी आईबीसी वहां वहां ले रहे हैं हमसे क्रेट के बाद भी। तो अपनी क्वालिटी ऐसे कुछ सर्विस, ऐसी कोई चीज जरूर होगी जो अपना प्रोडक्ट वहां के लोग हमसे ले रहे हैं। पहले पिछली साल हमारा सबको याद आता है कि 2 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट होगा। अभी इस साल हमारा 20-22 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। राइट, तो ये तो आप जब ये जो स्केल है साहब, ये मार्केट बहुत बड़ा है, ग्रोथ होने के लिए बहुत जगह है इसके अंदर। सर्विस क्वालिटी है, वो ग्रोथ, ग्रास ग्रोथ हम मानते हैं तो 6-7% का मानते हैं, लेकिन हम उससे दुगना तिगुना ग्रोथ कर रहे हैं, तो कोई ना किसी का मार्केट शेयर ले रहे हैं। इस छिपा हुआ नहीं है, राइट, मार्केट बहुत बड़ा है। राइट, राइट, अभी हम राइट, 20% के आसपास होंगे, तो अभी मार्केट बढ़ने के लिए बहुत है, इसमें जगह है। राइट। सो सर, ये जो आपने सर्विस क्वालिटी वाली बात की, मुझे याद है आपने पहले भी एक प्रेजेंटेशन में और कॉन कॉल में भी बोला था कि आप लोग जिस तरह से ऑल ओवर पैन इंडिया बेसिस में जगह जगह पे प्लांट बना के कोशिश यही कर रहे हैं कि सब जगह मौजूद रहे और जल्दी डिलीवर करे। ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कंपेयर टू बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स? आपके कॉम्पिटिटर्स इस तरह की सर्विस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, या हम कुछ अलग कर रहे हैं इसमें? सब कंपटीटर अपने अपने जगह पर सब एफर्ट करते हैं साहब, दूसरे का तो हम क्यों हिसाब रखें। हम अपना ये जानते हैं कि हम अपने कस्टमर को पूरा सेटिस्फाइड करते हैं, और हम अपने ग्रोथ से सेटिस्फाइड भी हैं कि हम जितना अचीव चाहते थे उतना वॉल्यूम हमने ग्रोथ लिया। वो सब कोशिश गॉट इट। करते हैं, अपने कितना कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है, कितना आउटपुट सामने वाला निकाल के सामने वाले को दे पाता है, सब उस पर खेल है। So plus we are one step ahead with our competition. We have been adding products. We have been adding product mix. एक कस्टमर को मैं ऑल प्रोडक्ट रेंज एक बास्केट में दे रहा हूँ,
Plus, we are coming up with recycling, which is a current demand. Our customers also want us a good reputed supplier to come up with the facility. So we are always a step ahead, and we want to become a role model for others. So this is what we have been taking ahead, and we would like to be a large supplier who a manufacturer in India. This is what नहीं सर, ये काफी दिस वाज वेरी हेल्पफुल सर. एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हो तो मेरा मतलब यही हुआ ना कि एक्सपोर्ट बेसिकली आप उन केमिकल कंपनीज को कर रहे हो जिनका एक्सपोर्ट ज्यादा है, राइट? नहीं, जिनका एक्सपोर्ट जाता है उनको नहीं करता हूँ. जो केमिकल बना रहे हैं उनको पैकिंग के लिए आईबीसी की रिक्वायरमेंट है, उनको देता हूँ. एग्जैक्टली. हाँ, तो बेसिकली absolutely who are the manufacturer or repacking, they are putting their chemical and exporting their products all over the world. Plus we are exporting our IBCs. We have appointed several and they have been kind enough. Sir, you're on mute. Vijay sir, you're on mute. Yeah. Thank you, sir. Next in line, we have Divakar Rana. Please go ahead with your question, sir. सर, मेरा एक क्वेश्चन था. आपने कंपटीशन के बारे में अच्छे से समझाया. तो सर, हम अगर प्रायर कॉन में आपने बोला कि हम डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे थे, तो क्या अभी भी हम ये डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हैं कस्टमर्स को? जो कस्टमर को, yeah, we do give customers and as and when required. ऐसा कुछ भी पॉकेट से नहीं देते हैं सर, वो जो देते हैं कमा के देते हैं. ऐसा कोई अलग से डिस्काउंट कुछ, लेकिन कहीं कुछ मैच करना है और करना है तो रेट मैच जरूर करते हैं. हम भी सामने वाले से जो परचेज करते हैं तो हम भी डिस्काउंट बहुत सा लेते हैं उनसे रॉ मटेरियल में. ठीक है सर, ये मेरा क्वेश्चन था लास्ट. थैंक यू. Thank you, sir. Next question we have from Rishi Kothari. Please go ahead with your question. Hello. Yes, sir. Thank you so much for the opportunity. I had two questions that I have to ask. What's the current overall utilization rate across all units, if at all, if I see on a combined basis? And what would be the optimal utilization across new capacities eventually, let's say when the plants are ready? Overall 70% utilization है अपना. So on a combined basis? Combined, if you see the combined, it is around 70%, including all categories. And if I tell you segment wise, it is polymer drum, it is more than 75%, and IPC it is around 65%, and then metal drum, it is right now it is around 69%, but eventually it will come up as in the machine will get installation will get completed. And for this WADA, the Maharashtra unit, so first year we 40%. So overall capacity we see around 30-35% capacity utilization in this this financial year. Okay, and by second year, we will complete more than that. Any number, probably 60-70%, just to give it a number. It is around 60-70 crore, 70 crore. We are seeing, looking on the in terms of revenue, 70 to 100 crores from our Maharashtra unit. Okay, got it. And okay, the other question being, in terms of automation nearing 90% in the MS drum segment, how do we envision further enhancing manufacturing efficiency across other product lines in terms of, will the manufacturing efficiency eventually be seen in other segment for our business or not? So for polymer drums, we have already we have been utilizing optimal capacity, like the most optimal way we are producing that metal polymer drums. IBCs also we have already automized everything, and we have been utilizing capacity as per that. So we have been doing R&D every time, and we are increasing the capacity. For metal drums, we saw a scope of 100, the utilization, how to increase the utilization. So that is what we are doing it right now. And it will definitely improve by 80-85%, more than that, in fact.
So in coming quarters, maybe next quarter onwards, you will see a definitely further improve in capacity of MS drums. And by that time, we will give you good news about Vada also, Maharashtra unit also. But just adding on to that, this type of automation on our different segments, will it eventually, give us a good cost optimization or cost efficiency per se in our product line? Yes, definitely. By So- utilization, by making further more automation, we will definitely get cost reduction in terms of terms of more output, less labor, and everything. So, well, just to give any sort of percentage increase, incremental increase in the margins front EBITDA level, what should be the increment change we see probably next in 1 to 3 years? Of course, we right now anyway running at 7-8% EBITDA level, but there was a time that we were running at around 11-12%, We are right? for the EBITDA more than 10% in coming this financial year. So hopefully we are on track with that. We are looking at a 10% EBITDA level margin. Correct, absolutely. And this will be purely because of the cost efficiency in the product line, or is It will not only cost efficiency, it will we will have a I'm expecting it the cost optimization plus we will get a reduction from power saving coming up. So altogether, I've been very it's a very conservative. So we are targeting this financial year. It is up to more than upward of 10%. So eventually we can see ourselves achieving the past EBITDA levels of 11-12%. Upward of 10%. I'm not taking any figure as of now. That's eventually, after let's say 2-3 years down the line, we can see that to achieve the same EBITDA that we used to have before. Because for that we need to utilize the entire capacity also. So we are on track to utilize the capacity of all the units. So as we start getting utilization, we will definitely improve on EBITDA level. Okay. Yeah, thank you so much sir, for the question. I'll join back the queue. Thank you, sir. Request all the participants to please restrict your questions to 2 questions each. Next in line, we have Ganesh Nagarsekar. Sir, please go ahead with your question. हेलो सर सर मेरा क्वेश्चन अपना एमएस ड्रम्स के ऊपर है तो वहाँ पे ड्यू टू द ऑटोमेशन अपना मार्जिन्स इंप्रूव हो रहा है एंड आई थिंक अर्लियर अपना मार्जिन्स यूज्ड टू बी अराउंड से 5 to 6% दैट इज गोइंग टू 8 to 9%. सो इज दैट इंक्रीज हैपनिंग इन FY26 itself या विल इट टेक अ फ्यू इयर्स टू गेट टू दैट 8 to 9% फिगर? साल से पता लगेगा जैसे ही ऑटोमेशन में हम कन्वर्ट हो रहे हैं अगले 1-2 महीने में उसके बाद से दिखने लगेगा इस फाइनेंशियल ईयर अच्छा तो मतलब FY26 में ही दिखने लगेगा अपने को? जी यस सर. हाँ जी और सर ये मतलब जो अपन ने ऑटोमेशन किया है हाउ हार्ड इज दैट फॉर अ कॉम्पिटिटर टू रेप्लिकेट? मतलब मेरा सवाल ये है कि ये जो अपन 8-9% पे पहुंच रहे हैं वो अपना सस्टेनेबल रहेगा कि जैसे अपना बाकी कॉम्पिटिटर्स भी उससे ऑटोमेशन ले आते हैं तो सप्लाई पे प्रेशर आके वो वापस कंप्रेस हो जाएगा? आसान नहीं है सर, वो नहीं हो सकता है, वो हर आदमी नहीं कर सकता. और करने वाले अच्छा, जो तो लोग किए हुए हैं जिनके पास है वो है किया है उन्होंने. अच्छा गॉट इट. मतलब एटलीस्ट मीडियम टर्म में अपना ये 8-9% का मार्जिन रहना चाहिए एमएस ड्रम्स में. हाँ रहना चाहिए. ओके थैंक यू सर. मेरा यही क्वेश्चन था. Thank you, sir. Next question we have from Khush Bantia. Please go ahead with your question, sir. Hi, thanks for the opportunity. So my main question to the management is, like, what is the major reason why our margins are lagging much behind than our competitors? मतलब because मैं उसका कारण वही है सर, कैपेक्स. जो मैंने पिछले 1-1.5 साल से कैपेक्स कर रहा हूँ उसमें जो एक्सपेंस हो रहे हैं उस कारण से ही है और कोई दूसरा कारण नहीं है. And sir, second question is on our recycling plant. कैपेक्स प्लस महाराष्ट्र प्लांट, यूनिट 7 ऑटोमेशन, यूनिट 6 4 प्लांट का कैपेक्स चल रहा था. यूनिट 6 का कैपेक्स चल रहा था जो ऑटोमेशन में जा रहे थे, नई बिल्डिंग ली है उसको ज्वाइन किया. यूनिट 7 के बगल में एक जगह 2.5 एकड़ लैंड था उसको लिया. यूनिट 7 और 8 था वो पहले, उसको मर्ज करके यूनिट 7 बनाया. प्लस रिसाइकलिंग प्लांट हुआ तीसरा. चौथा बड़ा प्लांट जो महाराष्ट्र में है
उस 4 जगह कैपेक्स चल रहा है, तो उसके कारण बहुत से इधर एक्सपेंस हुए हैं जो 2-4-5 करोड़ रुपया उसमें एक्स्ट्रा गया है। So unit 7 और capex we प्लस have 1 already तो 1.5 completed. करोड़ रुपया ईपीआर में गया, वो 5 करोड़ रुपए के कारण वो दिख रहा है आपको ये मार्जिन कम। Okay, sir. And another question is on the recycling plant. So when we are expecting it to start contributing to our top line? मेरे को लगता है अगस्त महीने से आएगा, अगले सितंबर से थोड़ा फंड उसमें मार्जिन क्रिएट होगी सितंबर महीने से। From FY26, September FY26. जी जी। Okay, and will it help to boost our margins, or मतलब will it have same margins as our existing business, or will it have better margins? बेटर मार्जिन होगा ना साहब उससे, उसके नेट सेविंग है, उसमें जो भी हमको सेविंग होगी नेट सेविंग आएगी। मार्जिन तो सभी जो सारे कैपेक्स जो हुए हैं, जो भी सारे मर्ज हो गए अभी, उस सब जगह से अर्निंग शुरू हो जाएगा। अभी इस महीने से ही चालू है अर्निंग, सब जगह से ही फंड आएगा ना। Last question is even our closest competitors are also being able to grow at around 15% annually. So do we have plans to मतलब outpace them? How will we are going to outpace them? उससे ज्यादा है ना, महाराष्ट्र इसीलिए किया है ना साहब। अभी तक तो हमारा लोकेशन गुजरात ही था, पहली बार हमारा लोकेशन महाराष्ट्र आया है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं ना उससे ज्यादा ग्रोथ करेंगे। Okay, so what I get from your answer is we already have demand from our existing customers, more demand. So we are not able to fulfill it right now because we are already at 100% utilization. नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो कस्टमर है उनकी डिमांड तो हम फुलफिल कर ही रहे हैं। नए लोकेशन से नए कस्टमर ट्रैक होते हैं। Okay, thank you. Thank you, sir. Next in line we have Saket Kapoor. Please go ahead with your question, sir. हाँ सर, सिर्फ एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन था सर। जैसे पिछले वर्ष का जो हमारा एबिडिटा था वो 51 करोड़ के आसपास था, और पिछले वर्ष का 53.5 करोड़ था। तो अभी जो आप एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम एडिशन की बात कर रहे हैं, 14-15% का जो आपने वॉल्यूम ग्रोथ के लिए भी अभी उल्लेख किया था, तो इन सब को फैक्टर करते हुए हम ट्रेजेक्ट्री क्या देखते हैं सर एबिडिटा की? ये जो 4-5% का करेक्शन आया है, किस लेवल पे हम इसको स्टेबल होता हुआ देखते हैं? तो मैं 70 करोड़ से ऊपर का आना चाहिए वो फिगर। अच्छा सर, इस वित्त वर्ष के लिए सर? हाँ ओके सर। और सर हमने जब कैश फ्लो में ये देखा है कि अपना वर्क इन प्रोग्रेस रहा, सॉरी बैलेंस शीट में क्लोजिंग में अपना वर्क इन प्रोग्रेस रहा है 45 करोड़ का, और पिछले वर्ष हमने शायद 68 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं, प्लांट मशीनरी ये सारे इंस्टॉलेशन लेके। तो फ्रेश अभी का यूनिट मई में स्टार्ट हुआ ना, इस महीने में, उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है। वो जो चलेगा तो अभी वो भी उसको कैपिटलाइजेशन करेंगे। वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी तक प्लान चालू नहीं हुआ था। तो सर जैसे 45 करोड़ का जो क्लोजिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है अभी, जो इस महीने में और अगले महीने में जो सात की रिप्रोसेस प्लांट का है और कुछ इसका है, बाड़ा का, महाराष्ट्र दो जगह का है। मतलब सोलर का भी अभी तक ऐसे ही खड़ा है, सोलर भी अभी आया नहीं है, वो सब है उसमें मिक्स्ड है। ओके, तो सर ये ओवरऑल फिर हमारा डेप्रिसिएशन नंबर क्या रहेगा इस वित्त वर्ष के लिए, अगर ये सारी चीजें कैपिटलाइज हो जाती हैं जब? 8 करोड़ के आसपास है ना सर। लास्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन नंबर 8 करोड़ था, उसमें 1.5-2 करोड़ रुपया बढ़ेगा। अच्छा सर, ठीक है सर। कुछ और पेंडिंग अगर रहता है सर तो मैं टीम से बात करके दोबारा फिर टच में आने की चेष्टा करूंगा, तो आप अलाउ कीजिएगा सर। इन केस मैं एक बार प्रेजेंटेशन दोबारा देखना चाहूंगा आपकी बार, क्योंकि क्लोजिंग में सर हमारा क्या हो रहा है कि हमारे रिजल्ट जब आ रहे हैं उस दिन कंटिन्यूस कई सारी कंपनीज के रिजल्ट रहते हैं, तो सभी रिजल्ट्स को देखना, उन पे टिप्पणी करना और फिर प्रश्न रखना टाइम बहुत शॉर्ट पड़ जाता है। तो यही कारण रहता है कि सर ठीक से पार्टिसिपेशन, मैंने इससे भी बेटर पार्टिसिपेशन हो सकती है और चीजें और डिस्कस की जा सकती है, बट ओवर क्राउडिंग हो जाने से सर फिर हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी छोटी भी है और ज्यादा लोग इसके विषय में भी जानते नहीं है। तो ये भी सर थोड़ा आप स्मरण रखिए कि हमें मौका मिले नंबर्स पढ़ने का, देखने का और कॉल रखने का। कॉल अगर एक और दिन के बाद भी रखा जाए
तो भी सर कोई उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा ये सुझाव है सर, अगर आगे इस पर अगर आप लोग विचार करें। ठीक है नहीं सर। सर, I understood. Thank you, sir. Next question we have from Dipesh Sancheti. जी सर। सर सारा केपेक्स जो आगे का FY26 में रखा है वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही है और रिसाइकलिंग प्लांट के लिए है कि आर वी अभी गोइंग टू गो इंटरनेशनल आल्सो? नहीं, दो ही बचा है केपेक्स होना अभी कंप्लीट इस साल में। एक रिप्रोसेस प्लांट, एक महाराष्ट्र का वाडा प्लांट। और उसके बाद जब तक महाराष्ट्र का वाडा प्लांट सेट नहीं होता है, एक साल तो कुछ नहीं सोचेंगे। जब वो सेट हो जाएगा, एक साल लगेगा उसमें, उसके बाद कुछ सोचेंगे। अभी नहीं सोचेंगे। तो सर पहले आप राजस्थान या मध्य प्रदेश जाएंगे या पहले सीधा मीना कंट्रीज? नहीं, कहीं भी मैं अभी किसी को कमेंट करूंगा इसके लिए। No comments. नो कमेंट। Okay, sir. I take that. अच्छा सर, आगे भी जय, do you think the sales growth will come from capex only, or will it come from better efficiency? I mean, So where do you see sales growth coming from? So it will add up. See, we are already running at 75-80% in polymer drums. IBCs we are running up and at full utilization. Metal drum we have certain scope coming up. We have already explained. So now whatever extra sale will come. So two factors: either we add machines, that's what we are already doing it. Plus, if the prices will increase. So for that we are ready in both the way. So increasing the capacity, we are already doing it. Prices increase, so we will definitely get the advantage of that. Right. And just wanted to know how big is Maharashtra land? It is around 10 acres. 10 acres plus 2.5 acres, which you have recently acquired, or? No, 10 acres. 2.5 तो गुजरात में लिया सर, ये 10 एकड़ महाराष्ट्र में 10 एकड़ ही। हाँ। वाड़ा में 10 acre लिया था. And what was the acquisition cost, if you can tell me, per acre? 10 crore ना, 10.5 crore. 10-10.5 10.5 crores के आसपास था. Okay, because the prices have increased significantly ना वहाँ पे, इसके लिए पूछा. We are focusing on our unit right now. To sell it out. And he said we have to focus on all the balance sheet as well as everything, na sir, इसके लिए. Anyways, all the very best, sir. I think I'm done with my questions, but all the very best and hope to see you soon. Thank you. Yeah, definitely. Thank you, sir. Next question we have from Jay Venkaria. Sir, please go ahead with your question. ऑटोमेशन की वजह से सैलरी एक्सपेंस कितना कम हो सकता है? तो जो आप मेटल ड्रम की बात कर रहे हैं ना, लगभग 3 लाख रुपया महीने का, मतलब समझ लीजिए 40 to 50 लाख पर एनम। ओके, थैंक यू। मेन उसमें सेविंग है, उसमें प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। सैलरी कम होगी और उतने की कम सैलरी में प्रोडक्शन डबल बनने लग जाएगा। तो पर हेड ड्रम का करीब सेविंग 100 रुपए का ड्रम का आ जाता है। या थैंक्स। Thank you, sir. We'll wait for another 1 minute. If participants have any questions, you all can raise your hand. Yes, sir, please go ahead. We have next question from Kush Bantia. Please go ahead. Yes. So, sir, I missed one number. So, at peak utilization, how much Maharashtra plant can add to the top line? 200 करोड़। फर्स्ट फेज में मैंने 200 करोड़ का वॉल्यूम पेज में, और उसके अंदर इतना प्लेस है, मशीन करेंगे तो वहां हम 400 करोड़ का बिजनेस ओवर पूरा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी है, तो डिमांड आएगा, विल ऐड अप। We can take the peak volume to around 85%. Okay, so and in first year we are targeting around 30% utilization, right? Around 70 to 100 crore. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. I think we are done with our questions. Thank you, Vijay sir. Thank you, Jay sir, for your time. And thanks to all the participants as well.
let me just add on some last Yes, sir. speech. So Yes, sir. I'll thank you all the participants. Thanks for joining. Thanks for asking questions. Thanks for correcting us. And I'll tell you, so we have been focusing on past few years on the capex to increase the capacity. So we have infrastructure is ready. So this year we'll definitely see a lot of growth coming up from the top line, and for the bottom line this year, this financial year, we have been targeting to increase our bottom line also, and we have taken many initiatives, and definitely in coming quarters it will start giving, and definitely when we next join on the con call, I'll see asking you this question that how this increased. So thanks for joining, and hopefully to see you again. Thank you so much. Thank you, sir.